اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی تھی۔ منظر دھندلا سا گیا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے پیشانی کو چھوا، پھر آنکھوں کو مسلا۔ چند لمحوں کے بعد ہاسپٹل کا کمرہ مدھم نیلگو روشنی میں نمایاں ہوا۔ قطرہ قطرہ رگوں میں سرایت کرتی ڈرپ، کئی خاموشیاں اور سناٹے لیے بند کھڑکیوں سے جھانکتی اداس شام۔ پلکیں جھپکا کر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، آنکھوں میں جلن تھی، سر بھاری تھا۔ سامنے ہی کرسی پر صابرہ بوا تسبیح ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کسی قدر کوشش سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما، پیشانی چومی، اسے بھینچ کر خود سے لگایا۔ وہ خالی الذہنی کیفیت میں ان کے سینے سے لگی سوچے جا رہی تھی، تو بس یہی کہ وہ یہاں کیوں کر اور کیسے موجود تھی۔ دھند مٹ رہی تھی، اندھیرے چھٹ رہے تھے، منظر واضح ہو رہا تھا۔ دماغ کی تاریک سرنگوں میں ایک روشنی سی پھیلی۔ مین روڈ پر دوڑتی گاڑیوں کا شور اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ موسلادھار بارش کے تصور سے وجود ایک بار پھر لرزیدہ ہوا۔ اس نے اسٹور پر کسی لڑکے سے موبائل لے کر سلیم کو فون کیا تھا۔ وہ اسلام آباد میں پوسٹڈ تھا، اس کی پکار پر بھاگا چلا آیا تھا۔ وہ پورا دن اس کے گھر اس کی بیوی کے پاس رہی تھی۔ طبیعت پہلے سے خراب تھی اور کچھ بارش کا بھی اثر تھا کہ اسے بخار نے آ لیا تھا، مگر وہ ان کے بے حد اصرار پر بھی نہ ہاسپٹل جانے کو تیار ہوئی تھی اور نہ ہی کچھ کھانے کو رضامند ہوئی تھی۔ صورتحال کے پیش نظر سلیم نے صابرہ بوا سے فون پر رابطہ کر کے ان کی ٹکٹ شام تک کروا دی تھی۔ اسے بس کا وہ مشکل ترین سفر یاد آیا، تاریکیوں میں گھرا وہ شاخ دن یاد آیا، انگاروں پر لوٹتا وجود، جلتی ہوئی ویران آنکھیں، کپ کپاتی انگلیاں، روتا تڑپتا دل، انگ انگ میں اترتا اضطراب۔ صابرہ بوا کے گھر پہنچنے تک، ان کے سامنے آنے تک، اور پھر کسی بے جان وجود کی طرح ان کی باہوں میں سمانے تک اسے سب یاد تھا۔ اس کے بعد جب سر چکرایا تھا اور اندھیرے چھائے تھے تو چیخو پکار سنتے اسے گمان ہوا تو بس اس امر کا کہ اب وہ مرنے والی ہے، مگر وہ مری نہیں تھی۔ اس کی سانسیں ہنوز چل رہی تھی، دل ہنوز دھڑک رہا تھا، کیفیت یوں ہو رہی تھی جیسے وہ لمبی بیماری سے اٹھی ہو۔ کیا انجام اب کسی نئے آغاز سے جڑ چکا؟ آنکھوں میں کرب لیے اس نے نظر اٹھا کر صابرہ بوا کو دیکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لبوں کو جنبش دی، آواز حلق سے نہ نکلی، آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ صابرہ بوا نے ایک دم سے آپ دیدہ ہو کر اس کا زرد چہرہ ہتھیلیوں میں لے لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اب وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سرخ پڑتی خالی ویران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سماعت میں پڑتے الفاظ اسے مجسم کرنے لگے، دھڑکن تھمنے لگی، تنفس بھاری ہوا، آنکھیں پتھرانے لگی۔ ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کر کے اسے کندھوں سے تھام کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اب اسے رپورٹ دکھا رہی تھی۔ دماغ پہلے سے معاف تھا، حواس شل رہے، لفظ عدم اور آواز صامت رہی۔ محرومیوں کے بوجھ تلے فنا ہونا، وجود یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق ہو گیا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا، اس نے اپنا آپ چھڑا لیا۔ وہ گہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ صابرہ بوا کو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ مذاق تھا نہ مزاح، ایک خبر تھی، بشارت کی۔ انہوں نے رپورٹ سامنے رکھی کہ وہ خود دیکھے، خود سمجھے۔ یہ سراب نہیں تھا، خواب بھی نہیں تھا، اور اس نے دیکھا، اپنی ان ویران آنکھوں سے دیکھا، پلکیں جھپکا کر اور دھڑکنوں کو تھام کر دیکھا۔ 5 سالوں تک جو رپورٹ منفی تھی وہ مثبت ہو کر سامنے تھی۔ 5 سالوں تک جو محرومی ساتھی تھی وہ انعام ہو کر واضح تھی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، منجمد، بے حس، بے جان، پتھرائی ہوئی نگاہوں سے زندگی کو کھوجتے، سانسوں کو جوڑتے، ایک بے جان کاغذ کو کپ کپاتی انگلیوں میں دباتے۔ تم بھانج ہو جنت، اور بھانج عورت ایک مرد پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ گلدان ٹوٹ گیا تھا، کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے تھے، وہ ایک مکمل تصویر پرزوں میں بٹ گئی تھی۔ جنت نہیں، جنت میرا بچہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
वक्त पलटने लगा, सफ़े उलटने लगे, हकायतें सुबह हो गई, दिन तारीख और तारीख रातें सफ़ा हो गई। ये एक कागजी शादी है, जन्नत कमाल ये सिर्फ कागज तक महदूद रहेगी। अब तुम हक महर की रकम अपने पास रख सकोगे। उसने पलकें झपकाई, सुर्ख डोरों में कुर्ब हलकोरे लेकर उठा, आंसू रवां हो गए। कुछ महरूमियां अता का एक रूप होती हैं, जन्नत अल्लाह की कुन की मुंतजिर, अपना रूप बदलने को हर लम्हा मुस्तइद। असल इम्तिहान तो उस मुद्दत का है जो इस महरूमी में गुजारी जाती है, और इस दौरान हमारे सब्र को जांचा जाता है, हमारे शुक्र को परखा जाता है, फिर ईमान का दर्जा मुतय्यन होता है। अल्लाह पूरे वजूद पर एक लर्जा सा तारी हुआ, आंखों से वहशत उतर गई, सांसों से वजन हट गया। जन्ना, बच्चे? साबरा ने उसे कंधों से थामा हुआ था। वो उसे पुकार रही थी, मगर वो उनकी सुन नहीं रही थी। मांगती रहो और देखती जाओ, अल्लाह की मर्जी से तुम्हारी झोली में क्या गिरता है। जो गिरे उसे बखुशी अपना लो, और ख्वाब और नुक्ते जितनी खुशी या जर्रे जितनी बरकत ही क्यों ना हो। पर्दों की दर्द से झांकती सूरज की तेज रोशनी, मिसेस शेराजी का मुस्कुराता चेहरा, बेशुमार कलर ट्यूब्स, कैनवस और पेंटिंग, हुंजा की पेंटिंग, उसरी युसरा की पेंटिंग। हर उसर के साथ युसरा है, और ये युसरा क्या है? अगली बार मैं इसका जवाब दूंगी आपको। यकायक मंजर बदला था। तुम्हारी फारस से शादी मेरी वजह से नहीं हुई है, ना ही तुम्हारी खाला की वजह से। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। नसीब? नसीब? हर तरफ एक ही गूंज थी, एक ही सदा। उस एक लफ्ज ने उसे कितना डराया था, कितना रुलाया था। आन की आन में अब कितना मोतबर, कितना मुनफरद, कितना बदी अनोखा हो गया था। जिस वक्त मनफी सोच जड़ पकड़े और मायूसी इंतहा की गहरी हो जाए, तो समझ जाओ ये शैतान का आखिरी वार है। ठीक उस वक्त पड़ रहा है जब वो तुम्हारे इनाम से वाकिफ हो चुका है, और उसका इनाम क्या हो सकता है उसने तब भी सोचा था और अब भी सोच रही थी। इस वक्त एक लम्हे के लिए भी ये इनाम उसके जहन में नहीं आया था, अब भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था। जन्ना, बच्चे? उसने सर उठाकर रोती सिसकती निगाहों से साबरा बुआ को देखा। यकीन और बेयकीनी के आलम में अंदर ही अंदर टूटते बिखरते हुए, खुद अजियती की दलदल में उतरते हुए, बार बार तारीख रात का मंजर आंखों में आ रहा था। अपना फैसला याद आ रहा था। मौत और उसके दरमियान एक कदम का फासला था, चंद लम्हों की मुसाफत थी। वो खुदकुशी करने वाली थी, अपनी जान लेने वाली थी। उसे वो आखिरी लम्हा याद आया, वो आखिरी पल जब फुटपाथ से आगे सड़क पर कदम जमाते वो ठहर गई थी। पता नहीं क्यों वो अपनी जगह से एक इंच भी तो नहीं हिल सकी थी। उसे नाना अब्बू याद आए थे, उनसे किया हुआ वादा याद आया था। अजियत भरी जिंदगी तो गुजार रही थी, आखिरत बर्बाद करने का हौसला नहीं था उसमें। और वो लम्हा ठहर गया, और वो लम्हा रह गया। पूरी दुनिया में खुद को तन्हा तसव्वुर करने वाली जन्नत कमाल उस लम्हे तन्हा नहीं थी। उसकी हिचकियां बंद गई। साबरा बुआ ने उसे बाजुओं में भर लिया, उनके सीने में सर दिए वो छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी। सारी महरूमियां, सारी अजियतें, सारे के सारे गम यकायक अदम हुए। वो एक अता पर, मुसीबत पर भारी हो गई। वो एक इनाम हर दर्द को फना कर गया। दुआएं रद्द नहीं होती जन्नत, महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे हों वो ना मिले तब भी आपके हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। अल्लाह हमेशा भर कर अता करता है, वो आपको हैरान कर देता है, और उसके खुदा ने उसे हैरान कर दिया था। जन्नत के शोहर ने बताया नहीं उसने घर क्यों छोड़ा। सीढ़ियां उतरकर नीचे आते हुए आवाज समाज से टकराती तो उमार अपनी जगह थम कर रह गया। बेसाख्ता गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से कदम उठाता आगे बढ़ा। ड्राइंग रूम की नशिस्तों पर खानदान के बड़े से बड़े सब विराजमान थे। सायरा सामने ही सर झुकाए बैठी थी। जन्नत के चचा चच्ची, फुफ्फी, छोटी चच्ची वगैरह सब मौजूद थे। किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था उसका।
करीमा आंटी उसके बाप से कह रही थी। वो अपनी जगह साकत सा उन्हें देख कर रह गया। वो जन्नत की सगी फुप्पो थी। मजलिस में जन्नत का किरदार डिस्कस हो रहा था। खानदान भर में तरह तरह की बातें फैल गई थी और तरह तरह की फैली हुई इन बातों की तस्दीक के लिए ही वो लोग यहाँ जमा हुए थे। किसी को ये खबर मिली थी कि वो घर के किसी मुलाजिम के साथ भागी थी और किसी ने ये सुना था कि फारिस वजदान के किसी दोस्त के साथ उसका चक्कर चल रहा था। तब ही उसे घर से निकाल दिया गया। वो अपनी जगह साकत सा पथराया हुआ खड़ा था। कोई इतना बेहिस, इतना बेरहम कैसे हो सकता है? गर्दन मोड़कर उसने हफ्सा आपी को देखा। वो सर झुकाए शर्मिंदा सी बिल्कुल खामोश बैठी थी। ना जवाब देने की हिम्मत थी, ना सफाई पेश करने की सकत। जन्नत कमाल एक बार फिर उनकी जाती जिंदगियों में भूचाल ले आई थी। एक बार फिर उनकी फैमिली जुबान जदे आम आ गई थी। कमाल की बेटी, कमाल की बेटी, अब सब कह रहे थे। वो खामोश थी हमेशा की तरह। आज भी उनके पास कहने को कुछ नहीं था। खैरियत है? किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जन्नत ने अपना घर फायजा आंटी की वजह से छोड़ा है, जिन्होंने उसके घर जाकर अच्छा खासा तमाशा क्रिएट किया? वो अंदर दाखिल होते ही बोल पड़ा था। हाँ, तो हरकतें ही उसकी ऐसी थी, मुंह दिखाने के काबिल जो नहीं रही होगी। करीमा आंटी ने फौरन से पैंतरा बदला। हरकतें? कैसी थी उसकी हरकतें? वो आंखों में गुस्सा लिए उनकी तरफ देखने लगा। ऐसी फितना परवर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पहले अपने भाई की जान ली, फिर हमारे भाई का सर खाया, बुरहान की जिंदगी जहन्नुम बनाए रखी। जरा पूछो तो आलिया से, कैसे दिन भर फोन से चपकी रहती थी। इश्क मशूके से फुर्सत मिलती तो घर संभालती। एक तो भांज, उन्होंने हकारत से सर उठाया और ऊपर से ढटाई अलग। माहीन का बच्चा मारने की कोशिश तक कर डाली। नफीसा बहन तो उसकी मौत मार गई। अरे मैंने तो सजा से कह दिया था, गैरों के लायक नहीं है ये, अपने जमान से निकाह कर दो, वही उसे सीधा रखेगा। मगर नहीं, वो गुस्से और हकारत से बहुत सी बातें, बहुत से किस्से, बहुत से वाकयात सुनाती जा रही थी और कोई भी उन्हें टोक नहीं रहा था। ये सब ऐसे ही था, ये सब शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा था। बस कर दें आंटी, फॉर गॉड सेक। वो सारा लिहाज और मुरव्वत बिलाए ताक रखते हुए चीख पड़ा। इब्राहिम साहिब, आपका बेटा तो पूरा बावला हो गया है। ना छोटे बड़े की तमीज है, ना लिहाज कर रहा है किसी का। इब्राहिम साहिब ने उसे तंबीहा करते हुए भरों की महफिल से चले जाने का हुक्म दिया था, मगर आज उसे कोई नहीं रोक सकता था। ना सायरा, ना इब्राहिम और ना खानदान का कोई फर्द। अगर पागल कह ही दिया है आपने मुझे, तो फिर मेरे पूरे पागलपन का मुजाहिरा भी देख लें। आपको क्या लगता है हम कल के बच्चे बेवकूफ और नासमझ हैं? हमें कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। नफीसा आंटी जन्नत की वजह से नहीं, आप सब की वजह से मरी है। उसने उंगली उठाकर सब की तरफ इशारा किया था। उन्हें बेटियों के ताने देने वाले आप लोग थे, उन पर तंजो तशनी करने वाले आप लोग थे, उनकी महरूमी का आप लोगों ने सरेआम मजाक उड़ाया, उन्हें ज़हनी मरीज बना दिया। जरा मुहासबा करते हैं आंटी। मुझे बताइए, सबा आपी ने हाल ही में चौथी बेटी को जन्म दिया है। दिन रात ससुरालियों के ताने सुन रही है ना, वो वही लफ्ज जो कभी आपने नफीसा आंटी को सुनाए थे। करीमा आंटी के चेहरे पर तारीक सा साया लहराया था। आपकी अपनी औलाद आपके गुरूर और तकब्बुर का खमियाजा भुगत रही है और आप में अब भी जुर्रत बाकी है कि आप उसी औरत की बेटी को एक बार फिर निशाना बना रही हैं। ड्राइंग रूम में खामोशी थी। अब तो जैसे कोई सांस भी नहीं ले रहा था। रोहिना चची को नाज था। वो 4 बेटों की माँ है। 4 शेर जवान उनके घर पैदा हुए हैं। उनकी नस्लें आगे चलेंगी। नफीसा आंटी उनके सामने 7 बेटियों की माँ कोई हकीर सी मखलूक थी और आज उनके वो तमाम के तमाम बेटे सिर्फ बेटियों के बाप हैं। उसने रुख बदलकर उन्हें देखा। आप अब इस बात को ज़ेरे बहस क्यों लाती हैं? 7 बेटियों की माँ होना नफीसा आंटी का कसूर था? अब इतनी सारी पोतियों की दादी होना किसका कसूर है? और रोहिना चच्ची को यूं लगा था जैसे बड़े बाजार में किसी ने तमाचा दे मारा हो। सायरा ने पहली बार अपने बेटे को नहीं टोका था। हफ्सा आंखों में हैरत सदमा लिए उसे देखे जा रही थी। मैं हैरान हूँ, आप लोगों में अभी भी हिम्मत है इस तरह इस औरत की औलाद पर जुबान दराजी करने की, जिसकी जिंदगी आप लोगों ने खुद जहन्नुम बनाई और इतनी बेहिसी कि जरा फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह तो अपना हिसाब ले रहा है। ये कैसे हो सकता है आप सब अपने हिसाब से इस तरह बेखबर रहें? आप लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है
कि हमें कुछ नजर नहीं आता होगा। ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा छा गया था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज आती। किसी भी बड़े फर्द की सकत नहीं रही थी और कुछ भी बोलने की। वो सब जन्नत के मामले में इकट्ठे हुए थे और उमार ने तो जैसे उन सब के इज्तिमाई को निशाना बनाकर सबकी हकीकतें उनके मुंह पर दे मारी थी। वो शदीद गुस्से के आलम में बिखरा हुआ सा खड़ा था। जन्नत कभी अपनी औलाद के लिए दरबारों मज़ारों पर नहीं गई और आप लोग कहते हैं माहीन का बच्चा ज़ाया करने के लिए उसने तावीज़ गुंडे करवाए हैं। वो सरापा सवाल बना उन सबको देखे जा रहा था। अब बुरहान के घर जो भी नुकसान होगा तो इसका इल्जाम सारी उम्र जन्नत के सर डालते रहेंगे आप लोग। जब उसे अपनी जिंदगी से खानदान से बेदखल कर चुके हैं तो फिर उसे डिस्कस करने का मकसद। फायजा चच्ची को कोई हक नहीं पहुंचता था इस तरह उसके घर जाकर उसके ससुरालियों के सामने बेइज्जत करने का। और खुदा के लिए उसने हाथ जोड़े, अब बख्श दें जन्नत को। बात खत्म नहीं हुई थी मगर उसने खत्म कर दी। अक्स अधूरे थे और उसने अधूरे रहने दिए। आईना मुकम्मल और सलामत था, हकीकतें अभी भी इतनी ही तलख और नुमाया। जो खामोशी उसकी मौजूदगी में छाई हुई थी वो उसकी गैर मौजूदगी में भी ठहरी रही। किसी में हिम्मत ना रही थी मजीद कोई बात या बहस कर सके, कोई दलील दे सके या कोई तरदीद कर सके। वो मजलिस, वो इज्तिमा सबका एहतसाब हो गया था। आईने में हर किसी का करीमा चेहरा वाज़िया था और उस चेहरे से तकरीबन सब ने नजरें चुराई थी कि हकीकत का सामना तो फिर वो लोग करते हैं जो खुद को बदलना चाहते हों। एक एक करके सब उठते चले गए। सिर्फ हफ्सा कमाल ही थी जो अपनी जगह सुन बैठी रह गई थी। वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रही। तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। साबरा बुआ उसे अपने घर ले आई। उनका अलग पोर्शन था। वो बैरूनी दरवाजे से उनके हमरा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। बीमारी का असर हनूस था। कमजोरी इतनी हो गई थी कि जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर उसका सांस फूल जाता था। ऊपर एक वसीओ अरीज कमरा था। बुआ उसे कमरे में ले आई। हवादार लंबी खिड़कियां जो पीछे सरसब्ज खेतों की तरफ खुलती थी और सामने वाली खिड़कियों से नीचे सहन का पूरा मंजर नजर आता था। जामन का फैला हुआ दरख्त, साए में बिछी हुई चारपाई, सुर्ख ईंटों का पक्का सहन, सफेद दीवारों पर सरसब्ज बेलें चढ़ी हुई थी। आहनी गेट बंद था। नीचे 3 कमरे थे। किचन था। मर्दों के लिए अलग से बैठक सामने ही बनी हुई थी जिसका एक दरवाजा बाहर से खुलता था। साबरा बुआ की भांजी नीचे मुकीम थी। ऊपर का कमरा, वॉशरूम और छोटा सा किचन उनके हवाले था। वो खिड़की में खड़ी नीचे देखने लगी। बच्चों के शोर के साथ संदल आपा की आवाज वाजिया थी। उनका नवासा बेटा पाइप हाथ में पकड़े दरख्तों को पानी देता। उसका रुख अपनी छोटी बहन की तरफ मोड़ चुका था और इस शदीद गर्मी में ठंडक के एहसास से खुश होने की बजाय वो भां भां करके रोने लगी थी। अली, संदल आपा ने किचन से ही उसे कड़ी नजरों से देखा था और उसने वहीं पाइप सर पर किए खुद को मुकम्मल भिगो लिया। एक तो गर्मी में काम करवाती हैं, ऊपर से डांटती भी हैं। ये दरख्तों को जरा पानी देने से तुम्हारी कमर टूटती है। जरा सा पानी देता हूँ। आंखें फैलाकर वो अपनी माँ की तरफ मुड़ा। अभी कहेंगी पूरे सहन में पानी का छिड़काव करो, फिर यहाँ से सारी चारपाइयाँ उठवा कर वहाँ रखवाएंगी। उसके बाद बाहर भेजेंगी, अली ये लाओ, अली वो ले आओ, अली ये काम करो, अली वो काम करो। शलवार और बुनियान में वो धूप में कुमलाया हुआ सा खड़ा था। जन्नत के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। संदल आपा उससे हॉस्पिटल में मिलने आई थी तो उनके साथ वो भी था। अल्लाह माफ करे, कब तुमसे चारपाइयाँ उठवाती हूँ मैं? उस दिन नहीं उठवाई थी जब यावर चाचू आए थे। यहाँ रखो, वहाँ रखो, अब वहाँ रखो। एक ही तो चारपाई थी, वो भी फातिमा की। हद है, ताने सुन लो मौसूफ से। वो बुरबुराती हुई चली गई। मोटर बंद करके किचन का रुख किया तो वो मुकम्मल भीगा हुआ कमर पर हाथ टकाए खड़ा था। धूप में आंखें चुंधिया कर यहाँ वहाँ देखता। छोटी बहन अपना मुंह खुश्क करती जामन के साथ बंधे झूले पर टिक गई थी। अब वो बहन के सर पर खड़ा था और उसे झूला छोड़ने का कह रहा था। बहन ने रस्सियों पर गिरफ्त जमा कर नफी में जोर शोर से सर हिलाया और एक बार फिर चलाई। अम्मा,
अली मत तंग करो उसे, संदल आपा झंझलाई। ऐ है लड़के, 2 घड़ी सुकून से बैठ कहीं। साबरा बुआ कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से तरफ जाते हुए बोली थी। वो फिर से बिगड़ गया। धप धप पाँव उठाता आहनी गेट धकेल कर बाहर निकल गया। फिर उसे आंगन में 2 साला बच्ची नजर आई। फीडर हाथ में लिए वो झूला झूलती बहन के पास चली गई थी। कुछ देर बाद किसी कोने से तीसरी बच्ची नमूदार हुई। तकरीबन 6 साल उम्र होगी। एक हाथ में कापी और दूसरे हाथ में पेंसिल लिए साए में रखी चारपाई पर बैठकर अपना होमवर्क करने लगी। ये मैं संदल का सूट ले आई हूँ, यही पहन लो। कल बाजार जाऊंगी तो गर्मियों के सूट ले आऊंगी, बुआ अंदर दाखिल होते ही बोली थी। वो मुड़कर उन्हें देखने लगी। अलमारी खोलकर उन्होंने एक सूट अंदर लटका दिया और दूसरा बेड पर रख दिया था। नहाकर कपड़े बदल लो, मैं तब तक खाने का इंतजाम देख लूं। संदल तो कह रही है आलू गोश्त पकाएगी, मेरा इरादा है साथ में बिरयानी बना लेते हैं, तुम्हें वैसे भी बिरयानी बहुत पसंद है। तेजी से बेडशीट बदलते हुए उन्होंने कहा तो जन्नत गुमसुम उन्हें देखती रही। डॉक्टर ने कहा है खुराक का बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, और तुम तो हो ही सदा की लापरवाह, सब कुछ मुझे ही देखना होगा। उनके लहजे और अंदाज से प्यार, खुफगी, तंबीहा, खुशी नुमाया थी। बात करते हुए वो इश्तियाक में आ जाती, कुछ सोचकर बेसाख्ता मुस्कुराने लगती। डॉक्टर साहिब जिंदा होते तो कितने खुश होते, मेरे लिए इतना एहतमाम ना करें। उसके लब हिले। बुआ ने अब के उसे जरा खुफगी से देखा था। क्यों एहतमाम ना करें, मैं तो कोई कमी नहीं होने दूंगी। सलीम को बताया तो कह रहा था पैसे भेज देगा। मुझे खास ताकीद की जन्नत का ख्याल रखिएगा, किसी भी चीज की कमी ना हो। फल फ्रूट सब्जियां अब कल आमर से कहकर मंगवाऊंगी सब। वो जैसे खुद से सब तय कर रही थी, उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर उसके लिए हर फैसला खुद कर रही थी। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती बुआ, जो बात दिल में थी लबों पर आ गई। चुप, एक लफ्ज नहीं, उन्होंने झिड़क दिया। ये तेरा घर है, तुम मेरी बेटी है। मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब डॉक्टर साहिब ने मुझे और सलीम को अपने घर पनाह दी थी। जब हम बेसहारा थे तो वो हमारा सहारा बने, सलीम को उसके पैरों पर खड़ा किया, उसके सारे अखराजात खुद उठाए, और अब जब उनकी बेटी पर वक्त आया है तो मैं मुंह मोड़ लूंगी। उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ रखा, उसके आंसू पोंछे। वो निचला लब दांतों तले दबाए रोने पर काबू पाती रही। चल जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर खाना भी खाना है। वो कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई। शावर चलता रहा तो आंसू भी बहते रहे। अपनी हालत सोच सोच कर अजियत भरती रही। कपड़े बदलकर वो तौलिए से बाल खुश्क करती बाहर आई तो दरवाजे की दर्ज से झांकता सर यकायक गायब हुआ। वो अली था, यकीनन अली था। दरवाजा खोलकर बाहर आई तो वो तेजी से सीढ़ियां उतरता नजर आया। उसने जोहर की नमाज पढ़ी, फिर खिड़की के सामने बैठकर बाल अच्छी तरह खुश्क किए, कंघी की। कुछ ही देर बाद बुआ ट्रे हाथों में लिए अंदर आ गई थी। सामने ही संदल आपा भी थी। 2 साला बेटी को उठाए वो उससे बहुत मोहब्बत से मिली। ये अलग बात थी कि उनकी मोहब्बत और इखलाक के आगे वो बार बार आंखों में उभरती नमी को पीछे धकेल रही थी। बामुश्किल आधी रोटी और बिरयानी के कुछ चम्मच लेने के बाद उसने हाथ खींच लिया था। बुआ उसे प्यार भरी खूबकी से देखकर रह गई थी। खत्म करो उसे, शाबाश। भूख नहीं है बुआ, अब तुम्हें सिर्फ अपनी भूख की फिक्र थोड़ी करनी होगी। संदल आपा हंसी। वो खफीफ सा होकर सर झुका गई। उसे बहुत सारा रोना आ रहा था। शायद बीमारी का असर जायल नहीं हुआ था। यही वजह थी कि वो बहुत हसास हो रही थी। बाद में खा लूंगी बुआ, अभी इतना ही। बुआ ने मजीद इसरार ना किया। मेडिसिन लेने के बाद वो तेज पंखा चलाए सोने के लिए लेट गई थी। बुआ उसकी तरफ से तसल्ली करके नीचे चली गई। सेहन में एक बार फिर संदल आपा और अली की तकरार शुरू हो चुकी थी, मगर आवाज मध्यम थी और कुछ देर में मध्यम से बिल्कुल खत्म हो गई थी। दीवार गिर खिड़कियों से पूरी तारीख का चांद नजर आ रहा था। पर्दे बंधे हुए थे, खिड़कियां खुली हुई थी। कमरे में हर तरफ और हर जगह बेतरतीबी सी थी। खुद वो सोफे पर बैठा था, पीछे की तरफ सर गिराए, बाजू फैलाए, छत पर कुछ देखते।
याददाश्त के किसी कोने में कुछ खोजते। सुकून अंदर बाहर और आस पास कहीं ना था। रातों की नींद तो वैसे भी उड़ी हुई थी। भूख खत्म, तलब तमाम। समातें फोन पर ठहरी थी। मुंतजिर निगाहें स्क्रीन को तकती थी। दूसरी तरफ खामोशी थी, कोशिश थी और नाउम्मीदी थी। पानी का गिलास टेबल पर रखा था, कॉफी का खाली कप और नींद की गोलियां भी। उसने अपनी आंखों को मसल डाला। दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। मुलाजमा एक बार फिर उसे मिसेस शेराजी का पैगाम देते आई थी। उसने जवाब दिया, न उठकर नीचे गया। कदमों की चाप उबड़ी, राहदारी में खामोशी छा गई। कुछ ही देर में जन्नत का मोबाइल बज उठा। मिसेस आफाक के नंबर से 7 साला जैद के मैसेजेस आने लगे। वो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग कर रहा था और उसने जन्नत के लिए एक अगेनमेंट रिंग भी पसंद कर ली थी। हर थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के मोबाइल से अपनी सेल्फी भेज देता। अब की बार नोटिफिकेशन में 2 तस्वीरें नजर आई। वो जन्नत से पूछ रहा था, इन दोनों में से किस रंग की अंगूठी ज्यादा प्यारी है। फारिस ने मोबाइल उठाकर तस्वीर देखी। उसे दोनों पसंद नहीं आई। विच वन? जन्नत का फियोंसी पूछ रहा था और शोहर लब भींचकर मैसेजेस देख रहा था। कुछ तवक्कुफ के बाद 2 और तस्वीरें भेजी गई। जोया से, अस्सलाम वालेकुम टू योर फ्यूचर भाभी। वो अपनी 3 साला बहन को सिखा रहा था। बहन के हलक से हल्की सी और क्यूट सी आवाज उभरी, अस्सलाम वालेकुम भाभी। ये दोनों बच्चे कई दिनों से उसका सर दर्द बने हुए थे। उसने मोबाइल को साइलेंट करके खुद से परे रख दिया। पानी के साथ नींद की गोली लेने के बाद एक बार फिर सोने की कोशिश की। अंदर का इस्तराब बढ़ गया, शोर बढ़ गया और दर्द बढ़ गया। दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। वो सुनी अनसुनी किए पड़ा रहा। वो बेड से टेक लगाए कारपेट पर 2 जानों बैठी थी। चेहरा जर्द था, आंखें सुर्ख और बेतहाशा नम हो रही थी। जरका रोशनी में कुर्ब नुमाया था। तन्हाई में वो सरापा मुजस्सम हुई खाली वीरान आंखों से अंधेरे में देख रही थी। पानी का गिलास पास रखा था। सिर्फ 2 घूंट लिए गए थे। जिंदगी और नसीब की दहशत वैसी ही थी। खौफ वही ठहरा था। सांसें वहीं अटकी थी। रात के आखिरी पहर बहुत अचानक उसकी आंख खुल गई थी और अब तब से वो उसी हालत और उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। बहुत सी बातें थी जो याद आ रही थी। बहुत सी हकायतें थी जो वाजिया हो रही थी। बहुत से ख्याल, वसवसे, अंदेशे रह रह कर सर उठा रहे थे। दिल तड़प रहा था। आंसू बहते जा रहे थे। उसे मिसेस शेराजी बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। उन्हें खो देने का गम तरपाए जा रहा था। उसने वादा किया था वो उन्हें उनके पोते से जरूर मिलवाएगी और ये वादा उस घर की दहलीज पार करते ही फना हो गया था। सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक वहीं रह गए थे। इससे पहले कि वो उसे छोड़ती, वो खुद उन्हें छोड़ आई थी, मगर दिल वही रह गया था। रूह यहाँ भटक रही थी। मोहब्बत को नफरत में बदलते वो देख चुकी थी। दोबारा नहीं देखना चाहती थी। इस अजियत से दोबारा गुजरने का हौसला नहीं था उसमें, और उसे गम था और बहुत बड़ा गम था। वो उनकी मोहब्बत से महरूम कर दी गई। मिसेस शेराजी अब हाथ उठाती होंगी तो उसका नाम नहीं लेती होंगी। उसे सोचकर उन्हें कराहत आती होगी। वो उसके वजूद से नफरत खाती होंगी। कम इल्जाम नहीं थे जो फायजा चची ने उसकी जात पर लगाए थे। किसी गुनाह, किसी गलती, किसी जुर्म का पर्दा नहीं रखा था उन्होंने। सब उगल दिया था, सब कह दिया था। कमरे की तमाम खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए थे। पंखा भी चल रहा था। मौसम ठंडा था और उसे फिर भी घुटन महसूस हो रही थी। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कराची से आऊंगा तब। हकायत लिखी जा चुकी थी। अंजाम सोचा जा चुका था और उसे फिर भी रोना आ रहा था। ये जुदाई, ये फासले, ये सजा तो रोजे अव्वल से तय थी। वो हर हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी। साथ रहने की ख्वाहिश बदल चुकी थी। उसने ख्वाब नोच कर फेंक दिए थे। इंतजार समेट कर रख दिया था। एहसासात को मुंजमिद और जज्बात को फना करके उसने खुद को अदम की वादियों में दफना दिया था। उसका ख्याल था ऐसे दर्द कम होगा, दुख कम होगा, रोना कम आएगा, मगर उसका खुद साख्ता डिफेंस मैकेनिज्म खसारे में पड़ गया। उसे तकलीफ ज्यादा हुई, उसे रोना ज्यादा आ रहा था। वो तड़प रही थी, वो जल रही थी। मुझे तलाक फौरी चाहिए होगी। तुम्हें अभी से डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम कर लेना चाहिए
ताकि मुनासिब वक्त पर बिना किसी ताखीर के साइन करके एक दूसरे से जान खलासी की जा सके। लेकिन अगर कुछ वजूहात की बिना पर मुझे कबल अज वक्त ये घर छोड़ना पड़ जाता है और इस दौरान मेरा तुमसे फिलहोफोर राब्ता भी मुमकिन नहीं हो पाता, तो मैं 1 माह तक की मुद्दत को ज़हन में रखूंगी और उसके बाद समझ जाऊंगी कि मुझे तलाक हो चुकी है। सो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि मुझे 1 माह के अंदर अंदर तलाक हो जानी चाहिए। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, तीसरा हफ्ता गुजरने वाला था। उसने अपनी आंखों को एक बार फिर बेदर्दी से रगड़ डाला। अब तक वो यकीनन उसे तलाक दे चुका होगा। अदीना जुबैर उसकी जिंदगी में वापस आ चुकी होगी। नफरतों के बादल छट गए होंगे, मोहब्बतों का नूर फैल गया होगा। जो उसके साथ होते हुए अधूरा था वो मनचाहे साथी के साथ मुकम्मल हो गया होगा। उसकी जिंदगी में जन्नत कमाल की जगह पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं रही होगी। गाल साफ करके वो उठ गई, वजू करके जायनमाज बिछाए किबला रुख खड़ी हो गई। कुछ सजदों में वो रोती रही थी और कुछ सजदों में हिम्मत और आसानियां मांगती रही थी। उसे यहाँ इस नई जगह पर एक नई जिंदगी का आगाज करना था। वो अपनी माजी भुला देना चाहती थी और बाहर दरवाजे के पास खड़ी साबरा बुआ आंखों में रहम और हमदर्दी लिए उसे देखकर रह गई थी। अक्सा ने जरा दूर से ही फारिस को देखा। किचन काउंटर टेबल के उस पार स्याह ट्राउजर पर फुल स्लीव सफेद शर्ट में मलबूस अपने लिए कहवा बना रहा था। सर झुका हुआ था, माथे पर बेतरतीबी से बिखरे बाल आंखों पर आ रहे थे। अभी कुछ देर पहले पठानी ने कहा था उसे साहिब बुला रहे हैं, तब ही से वो फिक्र में थी। वहीं खड़े खड़े उसने जहन दौड़ाकर खुद से सरजद होने वाली किसी मुमकिना गलती या कोताही को याद करना चाहा, मगर जहन माऊफ ही रहा। बामुश्किल गला खनकारते हुए उसने फारिस वजदान को अपनी मौजूदगी का सिग्नल देना चाहा। साथ ही दुपट्टे को उंगलियों में डालकर बेचैनी से घुमाया जा रहा था। आपने बुलाया मुझे? कहवा कप में उंडेल कर वो उसकी तरफ मुड़ा। बैठो। जी। घूंट भरते हुए उसने सामने स्टूल चेयर की तरफ इशारा कर दिया। अपनी घबराहट पर काबू पाती वो बैठ गई। सर झुका हुआ था, जरा सी निगाहें उठाकर अपने साहिब को देखना चाहा। लापरवाह सा हुलिया, बेख्वाबी का शिकार सुर्ख आंखें, भरी हुई शेव, जर्द चेहरा। उसकी जन्नत आपी की गैर मौजूदगी में साहिब ऐसे हो गए थे। पिछले माह जन्नत तुम्हें साथ लिए काफी घूमती फिरती रही है। जी साहिब। फांस की तरह कोई शय उसके हलक में आकर अटक गई। गुज़श्ता 1 माह की रूटीन जहन में दौड़ गई। जन्नत की बातें, वादे, डांट और तंबीहा सब याद आ गया। ड्राइवर बता रहा था उसने एक बार जन्नत के कहने पर किसी रहायशी कॉलोनी में उसे उतारा था। तुम भी साथ थी। फिर वापसी पर वहीं से 4 घंटों के बाद पिक किया था। अक्सा को ठंडे पसीने आने लगे। समझ में नहीं आया इकरार करे या इनकार। कहाँ गई थी तुम दोनों? कुछ बताते बताते उसने यकायक निचला लब दांतों तले दबाया। जी, वो शॉपिंग पर गए थे। रहायशी कॉलोनी की तंग गलियों में शॉपिंग हो रही थी। फारिस ने भाप उड़ाता कप रखा। अक्सा जी भरकर परेशान और शर्मिंदा हुई। अब क्या करे? उसे झूठ बोलना वाकई में नहीं आता था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे अक्सा। उसने जरा सी नजरें उठाकर अपने साहिब को देखा। वो बहुत तहम्मुल से पूछ रहा था, मगर वो जानती थी मतलूबा जवाब ना मिलने की सूरत में ये तहम्मुल उस पर नज़ला बनकर गिर सकता था। उसने कुछ हिम्मत मुजतमा की, कुछ हौसला पैदा किया। जो कस्में खा रही थी उनके टूटने पर कुफारे के तौर पर रोजों का हिसाब किया। एक बार फिर पसीना साफ किया। जन्नत आपी मुझे किसी के घर लेकर गई थी, उसने बता दिया। हालांकि जन्नत ने कहा था उसका हर राज कब्र तक जाना चाहिए। अब राज छुपाते छुपाते वो खुद तो कब्र में नहीं उतर सकती थी ना। अगर मैं तुम्हें वहां ले जाऊं तो तुम्हें घर का अंदाजा हो जाएगा। अक्सा ने कुछ फिक्रमंदी से उसे देखा। जन्नत आपी की वजह से पूरा घर परेशान था। अगर इस तरह उनका कोई सुराग मिलता है तो उसे हरगिज खामोश नहीं रहना चाहिए। हिम्मत करके इस बात में सर हिला दिया। एक बार फिर कसम और वादों का गम खाने लगा था। जन्नत आपी जब वापस आएंगी तो उसे हरगिज माफ नहीं करेंगी, लेकिन कोई नहीं, वो रोजे रख लेगी। और रोजों के तस्वुर से उसे एक बार फिर रोना आया। गटागट एक पानी का गिलास चढ़ाया और फारिस के हुक्म पर अपने अब्बा से इजाजत लेकर उसके साथ रवाना हो गई। ड्राइवर को जगह का इल्म था। गाड़ी सड़क किनारे रोक दी गई।
गाड़ी से उतरकर वो पैदल उसके पीछे तंग गलियों में चलता रहा। कभी दाएं तरफ मुड़ते तो कभी बाएं तरफ रुख करते वो 3 मंजिला इमारत के सामने रुक गई। सामने से बालकोनियां नजर आ रही थी। उसे याद था वो दूसरी मंजिल वाले घर में गई थी और ये बात उसने फारिस को बता भी दी। घर में कौन कौन था? एक मर्द था, उसकी बीवी और एक बेटा। फारिस ने लम्हे भर के लिए कुछ सोचा, फिर वापसी के लिए मुड़ गया। आप जाएंगे नहीं? उसने डरते डरते पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। वो जैसे ये जगह, ये घर ही देखने आया था और शायद मुलाकात के लिए वो किसी और को भेजने का इरादा रखता था। ड्राइवर ने उसे घर ड्रॉप कर दिया। बैरूनी गेट से अंदर दाखिल होते उसने गाड़ी की अकबी नशिस्त की तरफ देखा। फारिस मोबाइल फोन कान से लगाए किसी से बात करते हुए मुसलसल अपनी पेशानी मसल रहा था। वो गहरा सांस लेकर अंदर चली गई। गाड़ी आगे बढ़ गई थी। शाम का वक्त था। संदल आपा की छोटी बेटी मरवा को पहलू में सुलाए वो चारपाई पर करवट के बल लेटी थी। दूसरी चारपाई पर साबरा बुआ अभी आकर बैठी थी। पुरसोच निगाहों में बहुत से सवाल और फिक्र लिए वो जन्नत को देख रही थी। मैं जानती हूँ ये एक मुश्किल बात है, लेकिन करना भी जरूरी है। यूं ही बैठे बैठे वो कुछ सोचकर मुखातिब हुई थी। उसने तुझे ढूंढा तो जरूर होगा। जन्नत की आंखें धीरे से खुल गई। सवाल गैर मुतवक्का था। क्यों ढूंढेगा वो मुझे? उसने हिम्मत करके पूछा। बीवी है तू उसकी? लम्हे भर के लिए एक सकूत सा उस पर तारी हुआ। बुरहान की भी तो वो बीवी थी। वो कभी उसके पीछे नहीं आया था। फारिस शेराजी के साथ तो ये एक जबरदस्ती का अनचाहा रिश्ता था, जिसके आगाज से पहले ही अंजाम तय कर दिया गया था। वो भला उसके पीछे कैसे आ सकता था? उसे कैसे ढूंढ सकता था? वो बुआ को बताना चाहती थी, इंसान उन्हें ढूंढता है जो गुम हो जाए, उन्हें नहीं जिन्हें वो खुद गुम कर दे। जन्ना, वो जरा बेकरार हुई। अब तक वो अपनी पहली बीवी को वापस भी ले आया होगा बुआ। उसने इतने आम लहजे में इस अंदाज में बात की जैसे वो अपने शोहर की नहीं, मोहल्ले के किसी दूसरे मर्द की बात कर रही हो। बुआ तहय्युर से उसे देख कर रह गई। और तुझे वापस नहीं लाना चाहेगा? और बात तो चाहत की थी और ख्वाहिश की थी और मोहब्बत की भी। और ना चाहत थी, ना ख्वाहिश और ना मोहब्बत। हो सकता है उसने अब तक मुझे तलाक भी दे दी हो। उसने मुबहम लफ्जों में बहुत नॉर्मल से लहजे में तलाक का इशारा दे दिया। वो चाहती थी बुआ समझ लें एक तलाक कोई छोटा मोटा नहीं। अगर दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? तलाक तो नहीं हो सकती। तो हमल से जो है। जन्नत की धड़कनें थम सी गई। अंदर बाहर सन्नाटा छा गया। यह ख्याल तो एक लम्हे के लिए भी उसके जहन में नहीं आया था। क्या बहुत जुल्म करता था? मारता पीटता था? आंखों में फिक्रमंदी समोए उन्होंने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद तशवीश से पूछा। लफ्जों की मार के आगे जिस्मानी तशद्दुद की क्या औकात? उसे बुरहान से पड़ने वाला वो थप्पड़ याद आया। तकलीफ इस थप्पड़ की ज्यादा थी और बहुत ज्यादा थी। नहीं, बुआ की अटकी हुई सांसें यकायक बहाल हुई। उन्होंने दिल में बुरहान से पड़ने वाला वो थप्पड़ याद आया। तकलीफ उस थप्पड़ की ज्यादा थी और बहुत ज्यादा थी। नहीं, बुआ की अटकी हुई सांसें यकायक बहाल हुई। उन्होंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो तशद्दुद का मसला नहीं। एक बार फिर खामोशी हायल हो गई। आंखें मूंद कर जन्नत ने दिल से दुआ की कि बुआ कुछ और ना पूछे। जन्ना, बच्चे क्या सुलह का कोई रास्ता नहीं निकलता? अब वो मोहतात लहजे में बहुत नरमी से पूछ रही थी और ये फकत सवाल नहीं था, उसे पलटने का रास्ता दिखा रही थी। जन्नत दम साधे रही। पहले की बात और थी, अब तू उसके होने वाले बच्चे की माँ है। मर्द लाख पत्थर दिल सही, कम अज कम अपनी औलाद के लिए तो नरम पड़ ही जाता है। उसका चेहरा उजल रहा। तुम आंखें बंद रही, अपनी सिसकियां दबाए वो चुपचाप लेटी रही। वो उठकर उसकी चारपाई पर आ गई, नरमी से उसके बाजू पर हाथ रखा। मैं जानती हूँ ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर तू खुद सोच, इस तरह तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेगी? फिर तुझ पर एक बच्चे की जिम्मेदारी आने वाली है। उसके लिए अगर सुलह सफाई का कोई भी हल निकलता हो तो तुझे इस हल पर वाकई गौर करना चाहिए। अपनी बात खत्म करके उन्होंने चंद लम्हों तक उसके जवाब का इंतजार किया, मगर जन्नत ने गोया लब सी लिए थे, सांस को रोक लिया था। सोचना जरूर। आंखों में फिक्र लिए उसकी पुश्त थपथपाकर वो अपनी चारपाई पर चली गई। जन्नत ने आंखें खोल दी। उसका पूरे का पूरा वजूद दर्द की लपेट में आ गया था। उसने अभी तक बुआ को अपने मसलों से आगाही नहीं दी थी। फारिस की नफरत और अनचाहे रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। बुआ 5 साल का अजाब जानती थी, 5 माह की अजियत से नावाकिफ थी।
उन्होंने उसके दर्द का, उसकी बेकसी और बेबसी का अंदाजा ही नहीं था। वो अभी तक इस पोशीदा इख्तलाफ को मामूली नोयत का समझकर उसे फायजा चची की हरकत से जोड़ रही थी। उन्हें उसके मामलात इतने साफ और सीधे लगते थे कि उनका ख्याल था कि उसका शौहर औलाद की खबर मिलते ही उसे बखुशी अपना लेगा। वो उसके इस तरह अचानक घर छोड़ने पर भी बहुत फिक्रमंद होगा। बुआ हल की बात करती थी, सुलह की राह देखती थी, एहसास का जिक्र करती थी, माफी पर यकीन रखती थी। वो फारिस वजदान को नहीं जानती थी, जान भी नहीं सकती थी, मगर वो तो जानती थी उसे, और बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसकी नाक, गाल और आंखें सुर्ख होने लगी, आंखों पर बाजू रखे वो बेआवाज रोने लगी। फारिस के घर मिसेस शेराजी की वजह से रुकी हुई थी और मिसेस शेराजी ही की वजह से अब वापस नहीं जाना चाहती थी, और ये बात वो चाहकर भी बुआ को नहीं बता सकती थी। वो उन्हें फारिस वजदान की नफरत की वजह नहीं समझा सकती थी। सारे लफ्ज, सारी दलीलें, सारी की सारी वजाहतें खत्म हो जाती थी। एक खामोशी ही थी जो रह जाती थी, एक जमूद ही था जो तारी हो जाता था। उसने पहले भी किसी को कुछ नहीं बताया था, अब भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन बुआ इन सब बातों से बेखबर इन रास्तों को ढूंढ रही थी जो अजियत भरे और पुरखार थे। इन खुशियों को तलाश रही थी जिन पर उसका हक था ही नहीं। बात नसीब की थी और अब भी नसीब की ही थी। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ा दिए गए, टब में पानी भर दिया गया, कागज की कश्तियां बनाई गई, रंगों से कटी लकीरें सफ़ों पर लगाई गई, कई फूल बनाए गए, कई घर सजाए गए और कई खुशियां सब्ज दरख्तों की शाखों पर परिंदों की सूरत बैठा दी गई। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। फातिमा की दो गुड़ियां थी, एक को दुल्हन और दूसरी के बाल छुपाकर, मार्कर से मूछें दाढ़ी बनाकर, सफेद शलवार सूट पहनाकर जबरदस्ती का गुड्डा बना दिया गया। शाम तक वो शादी सर इंजाम पाना थी। उसके कमरे में अलमारी के एक खाने में दुल्हन का पूरा कमरा सेट किया जाने लगा। नन्हे नन्हे शादी कार्ड छोटी छोटी बच्चियों में बांटे गए। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में, सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। मगरिब तक सेहन में जीते जागते फूल जमा हो गए। गुड़िया का कमरा, उसका सामान, उसका जोड़ा देखा गया। दुल्हा को बड़ी शरारती निगाहों से परखा गया। हंसी दबाई गई, फिर रुखसती मुलाहिजा की गई। नीचे सेहन से ऊपर उसके कमरे तक बारात आई और फिर पुलाव खाया गया। हंसते मुस्कुराते फूल खुशी खुशी चले गए, मगर उनकी आमद से जो सुकून उतरा वो वहीं ठहर गया। किसी आंख में नहीं अश्क, गम तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया तो भी मुस्कुरा, उसे भूल जा। कमरे की सफाई करते, अपने कपड़े धोकर तार पर फैलाते, तेज धूप में गुलाबी रंगत लिए मुंडेर से आगे दूर दूर तक फैले सरसब्ज खेतों को देखती वो क्यों अटा हुआ है गुबार में, गमे जिंदगी के फशार में। वो जो दर्द था तेरे बख्त में, सो वो हो गया, उसे भूल जा। और नीचे अपनी बहनों की गैर मौजूदगी में झूले पर बैठा अली जरा सी खुफगी से उसे दूर से देखता हुआ कि उसकी आमद के बाद से उसकी 3 अदद शरारती बहनें अब हर वक्त आपी आपी करती और ऊपर ही पाई जाती थी। अब ना किसी से पाइप छीनने पर लड़ाई होती, ना झूला हथियाने पर शोर मचता, ना छोटी चारपाई के लिए रोना धोना होता। कितना सुकून और कितनी खामोशी थी घर में। उसकी अम्मा अब आराम से हर काम करती थी, पड़ोसियों के घर चक्कर भी लगा आती थी, शॉपिंग पर भी बगैर फिक्र के चली जाती थी। अब वो उससे ये नहीं कहती थी, अली तुम उनका ख्याल रखना और ऐसे ख्याल रखना और इस तरह ख्याल रखना। दूर ही से उस गासिब लड़की ने उसे देखते हुए हाथ हिलाया तो दादी नानी के लाडले ने नखुवत से चेहरे का रुख मोड़ा। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो, वो था एक दरिया वसाल का, सो उतर गया, उसे भूल जा। उजाले आसमानों पर सिमट गए, अंधेरा धरती पर उतर आया।
चार सौ सुकून भरी खामोशियां छा गई और बहुत ऊपर से मध्यम रोशनी में वो मंजर नुमाया हुआ। सलीम से वीडियो कॉल करती बुआ, वो सामने ही वो बैठी थी, फातिमा, ईशा और नन्ही मरवा को साथ लिए। आज सुबह ही बुआ ने लूडो मंगवा कर दी थी और अब हंसते मुस्कुराते वही खेल खेला जा रहा था। वो जीत रही थी, बच्चियां हार रही थी। सलीम को पता चला तो खूब हंसा। ये वैसी की वैसी है अम्मा, जरा नहीं बदली। वो मुस्कुराई और यही मुस्कुराहट उसकी आंखों की नमी बन गई। ना वो आंख ही तेरी आंख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था। दिल मुंतजिर तो ये किस लिए, तेरा जागना, उसे भूल जा, उसे भूल जा। वो नीचे अली के पास गई, कमर पर हाथ रखकर सर उठाकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारी बहनें मुझसे हार गई, तुम जीत कर दिखाओ तो बात बने। इतने दिनों तक उसे नजरअंदाज करता अली यकटक उसे देख कर रह गया। उसकी नन्ही सी गैरत को बहनों की शिकस्त गवारा ना हुई। चैलेंज कबूल करके फौरन ऊपर आ गया। एक बार फिर महफिल जमी और वो 9 साला बच्चे से हार गई। ये जो रात दिन का है खेल सा, उसे देख, उस पे यकीन न कर। नहीं अक्स कोई भी मुस्तकिल सरे आईना, उसे भूल जा, उसे भूल जा। आपको नहीं पता लेकिन मैं बहुत ज़हीन हूँ, उसने सर उठाकर फातिहाना अंदाज में जताया। बहनें उसके साथ जुड़ी बैठी थी और इतना खुश हो रही थी जैसे उनके भाई को इफ़्फ़त इकलीम की दौलत मिल गई हो। एक मरवा ही थी जो फीडर मुंह में डाले उसकी गोद में बैठी उसकी खामोश साथी बनी हुई थी। जो बस आते जा ही उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया, उसे रोकने से हसूल क्या, उसे मत बुला, उसे भूल जा। उसकी आंखें धुंधलाई, तबस्सुम होंठों पर ठहर गया। दिन बेदार हुआ, शाम आंखों में उतर आई। वक्त गुजरा, चंद दिन गुजर कर एक बार फिर रुक गया। वो संदल आपा के बच्चों को अब शहजादियों की कहानियां सुना रही थी। अली नाक मुंह चढ़ा रहा था। उसे तो किसी भूत, किसी जिन, किसी ताकतवर शहजादे की कहानी सुननी थी जिसने कई लोगों के सर फाड़े हों, दियो बगाए हों, पहाड़ गिराए हों, तबाहियां मचाई हों। मुझे नहीं आती ऐसी कहानियां, वो उसे घूर कर कह रही थी। आप बहुत बोर करती हैं। रुख बदल के उसने कान पर हाथ रखा था। तो ये किस लिए शबे हिजर के उसे हर सितारे में देखना, वो फलक के जिस पे मिले थे हम, कोई और था, उसे भूल जा। सफेदे के पत्तों से हवाएं सरसरा कर गुजरी। बादलों की ओर से निकलती चांदनी सेहन में उतर आई। उसके आसपास हर तरफ उम्मीद के नुकराई जर्रे बिखर गए। उसने दुआ मांगते हुए उन जर्रों को उंगली की पोर पर चुना। आंखों में नन्ही जान ख्वाब होकर बस गई। कलबे सरूर की लय में डूबा तो अंग अंग में सुकून ठहर गया। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था, उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। आसमान को देखते उसने आंखें मूंद ली। तकिया फिर से भीगने लगा मगर लबों पर मुस्कुराहट ठहरी रही और काफी देर तक ठहरी रही। मतला अबर आलूद था। फिजा में हबस के साथ साथ खामोशी छाई हुई थी। शदीद गर्मी से उकताए हुए अली का ख्याल था आज बारिश जरूर होगी। वो भी यही चाहती थी लेकिन घर पहुंचने से पहले तक नहीं। संदल आपा नन्ही मरवा को लिए अपने मेके गई हुई थी। साबरा बुआ ने अपनी हमसाई के दावत पर उसे और बच्चियों को भेज दिया था। खुद वो घर में सलीम की बीवी अन्नम की किसी रिश्तेदार की वजह से रुक गई थी जो आज सुबह ही उनसे मिलने आ गई थी। साबरा बुआ की हमसाई का घर हरे भरे खेतों और वसी सब्जाजार के उस पार था। दावत से 4 बच्चे तक फारुग होकर उसने वापसी का रुख किया तो उस वक्त आसमान स्याह बादलों को लपेट में ले चुका था। फातिमा, ईशा और अली की पगडंडी पर शोर मचाते भागे चले जा रहे थे और वो सर पर दुपट्टा लिए एहतियात से कदम उठाती उनके पीछे चल रही थी। शहद बालों की कुछ लिटें पेशानी से चिपकी हुई थी। गर्मी की शिद्दत से चेहरा सुर्ख हो रहा था। आज तो तूफान आएगा, अली ने हाथ उठाकर आसमान को देखते ही कह दिया। अल्लाह न करे अली, वो दहल कर बोली। उसे बारिश जरूर चाहिए थी मगर तूफान के साथ हरगिज नहीं। अली ने मुड़कर उसे देखा फिर रुक गया। आप यहाँ नहीं आई हो ना, इसलिए आपको नहीं पता। हमें पता है यहाँ सारी हवाएं रुक जाती हैं, फिर बादल आते हैं, वो बिल्कुल काले हो जाते हैं, फिर हवाएं चलती हैं और बहुत जोर से चलती हैं। इतनी जोर से कि अगर आप कमरे में नहीं छुपेंगे तो उड़ जाएंगी।
जन्नत ने रुककर पसीना साफ किया, गहरा सांस लेकर फिर से कदम उठा। पता नहीं अली को ये क्यों लगता था कि वो किसी और सियारे की मखलूक थी, जिसे बारिश, आंधी और तूफान के बारे में कोई इल्म ना था। उसके बाद बारिश आती है, बहुत तेज। अली ने दोनों हाथ चेहरे के करीब लाकर आंखें मींची। इतनी तेज कि अगर मैं कमरे में नहीं छुपूंगी तो बह जाऊंगी। बाकी जुमला उसने बेजार होकर मुकम्मल किया। बिल्कुल, अली इतराया, फिर तेजी से भागा। फातिमा ने उसके देखा देखी रफ्तार पकड़ी। अलबत्ता ईशा पगडंडी से गुजरती, कहीं से फूल, कहीं से पत्ते, कहीं से कोई कली तोड़ती जा रही थी, और इस अमल की वजह से वो जन्नत से भी पीछे रह गई थी। ईशा! हर थोड़ी देर बाद वो रुककर उसे पुकारने लगती, और ईशा सरायत पकड़कर फिर से सुस्त हो जाती। खेतों के उस पार मजबूत रास्ते पर कदम जमाते ही उसे फिजा में यकायक ठंडक का एहसास हुआ। हवाएं चल पड़ी थी, मगर इतनी तेज नहीं थी कि उसे उड़ा ले जाएं। ईशा का हाथ पकड़कर अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए वो दाएं तरफ गली में दाखिल हो गई। बिल्कुल सामने सड़क वाज़िया नजर आती थी, जिस पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती हुई दिखाई दे जाती थी, वरना मोटरसाइकिल या फिर रिक्शे नजर आते रहते। एक स्याह लैंड क्रूजर उसे सड़क किनारे ही खड़ी दिखाई दे गई थी। शायद कोई जागीरदार अपनी जमीनों के दौरे पर था। गर्दन मोड़कर उसी तरफ देखते वो दूसरी गली में दाखिल हुई, और अगले ही लम्हे अपनी जगह पत्थर की तरह साकत हो गई। अली ने भागकर आहनी दरवाजा अंदर की जानिब धकेल दिया था। फातिमा उसके पीछे भागी थी। ईशा को गली में ही कोई चीज नीचे गिरी हुई मिली थी, जिसे उठाने के लिए वो झुक गई थी। वक्त लम्हे भर के लिए रुका था, और फिर जैसे रुका रह गया था। बारिश के कतरे फिजा में मुअल्लक हुए, हवाएं रुक गई और शोर थम गया। स्याही माइल जीन्स पर खाकी कॉटन ऑफ वाइट शर्ट में मलबूस फारिस वजदान उसके सामने खड़ा था। कुशादा पेशानी पर बाल बिखरे थे, हिजल आंखों में सुर्खी में नमी ठहरी थी। बढ़ी हुई शेव के साथ यकीन और बेयकीनी में मदगम होते तासुरात में एक पोशीदा कुरब लिए। वो वहम से ख्याल और फिर ख्याल से एक हकीकत हो गया था। बादलों की घन गर्ज के साथ बारिश शुरू हुई। उसे घर छोड़े 25 दिन हो चुके थे। 26वें दिन वो उसके सामने खड़ा था। उसने वो मुद्दत पूरी होने नहीं दी थी, उसे वक्त की हद से निकलने नहीं दिया था। जन्नत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। फारिस वजदान यहाँ नहीं हो सकता था, उसके पीछे यहाँ नहीं आ सकता था। एक निकाह ही तो था, और इस निकाह की तो फारिस वजदान के नजदीक कोई अहमियत ही ना थी। वो किसी बिजनेस डील की तरह इस रिश्ते को आम सा कॉन्ट्रैक्ट समझता था, और इस आम से कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो इतना सफर तय करके यहाँ तक नहीं आ सकता था। उसका रास्ता नहीं रोक सकता था। लेकिन जो फारिस उसके सामने खड़ा था, उसने ऐसा कर दिया था। वो अब कदम उठा रहा था तो उसकी चाल गैर मुतवाजन थी। ऐसे लगता था जैसे वो किसी लंबे सफर से शिकस्त खुर्दा सा लौटा हो। मंजिल अब भी उसके लिए बेनाम, और रास्ता अभी भी उसके लिए मुश्किल हो रहा हो। जाने वो बारिश थी जिसने उसका चेहरा तर कर दिया था, या वो आंसू थे जो उसकी आंखों से गिर रहे थे और वो समझ ना सकी। फारिस के साथ उसके मामलात इस नौयत के हरगिज नहीं थे कि वो उस लम्हे को कमजोर पड़ती या हसास हो जाती। वो उसका सहारा नहीं था कि उसके बिना वो टूट कर रेजा होती। लेकिन उसे रोना आया था, और जाने क्यों शिद्दत से रोना आया था। मगर वो सारी चीखें आंखों में लिए जब्त किए खड़ी थी। वो जिंदगी की तरफ बहुत मुश्किलों से पलटी थी। वो दोबारा फना नहीं होना चाहती थी। वो वहीं खड़ी थी जहां वो थी, मगर फारिस वहां नहीं था जहां वो हुआ करता था। वो पहले किसी और मुकाम पर था, अब किसी और मुकाम पर नजर आ रहा था। फासला खत्म हुआ और वक्त रुक गया। करीब पहुंचकर उसने आहिस्तगी से हाथ उठाया, कपकपाती उंगलियों से उसका गाल छुआ। वो यकीन करना चाहता था जन्नत ख्याल नहीं थी, एक हकीकत हो चुकी थी। उसके चेहरे के तासुरात यकायक यूं हुए जैसे उसमें अभी अभी जिंदगी की एक नई लहर दौड़ी हो, या जैसे उसकी थमी हुई सांसें नए सिरे से बहाल हो गई हों। वो फिर से जी उठा हो। वो उसकी हर कैफियत और हर एहसास से बेखबर उसे बहुत सदमे से देख रही थी। अली कह रहा था आज तूफान आएगा। अली ठीक ही कह रहा था। जन्नत कमाल की जिंदगी में तूफान आ चुका था। यकायक वो अपने सकते से बाहर आई। उसने फारिस का हाथ झटक दिया। उसी सरायत से रुख बदल कर घर में दाखिल हुई।
और उसी तेज बौछार में भीगती हुई सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में बंद हो गई। बारिश ने जोर पकड़ लिया था। आंधी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। सफेदे के दरख्त हवा के जोर से गोया सहन की दीवारों पर झुके चले आ रहे थे। दूर कहीं बिजली चमकी थी। बादल गरजे थे। अंदर और बाहर का मौसम एक सा हो गया था। फिजा का सकूत तूफान ने धर्म भरम किया था और उसके अंदर का सुकून फारिस वजदान ने खत्म कर दिया था। वो अंधेरे में खिड़की के सामने सर झुकाए बैठी थी। चेहरा सुता हुआ था। लब भींचे हुए थे। आंखों में नमी ठहरी थी। फारिस वजदान किसी के बुलाने पर यहाँ नहीं आया था। बुआ भी कुछ देर पहले ही अपनी पोजीशन क्लियर करके गई थी। उन्होंने फारिस से राब्ता नहीं किया था और ना ही इस सिलसिले में सलीम से कोई बात की थी। वो ये जरूर चाहती थी जन्नत अपने शोहर के पास चली जाए, मगर उसके लिए उन्होंने खुद से कोई कोशिश नहीं की थी। वो उसे एतमाद में लिए बगैर ऐसा कोई कदम उठाने का सोच भी नहीं सकती थी। तो क्या मिसेस शेराजी ने उसे भेजा था? क्या वो उनके कहने पर यहाँ आया था? उसका दिल चाहा वो अभी नीचे जाए और उससे मिसेस शेराजी के बारे में पूछे, मगर वो नहीं गई। जहन को हर तरह के खौफ और वसवसे की गिरफ्त से छुड़ाती वहीं बैठी रही। जाने कितने गम थे जो याद आए जा रहे थे। अपनी रियाजतें, सब्र, बर्दाश्त और फारिस वजदान की नफरत, धमकियां और तलाक। एक वादा था जो उसने खुद से किया था और अपने उस वादे पर उसे हर सूरत कायम रहना था। वापसी की हर राह उस पर पहले से मसदूद थी। उसका हर दरवाजा उस पर बहुत पहले से बंद था। अब उसे कोई हमाकत नहीं करनी थी और किसी सूरत नहीं करनी थी। ना सर झुकाना था, ना मिन्नत करनी थी और ना किसी दबाव में आकर कोई कदम उठाना था। बात अब उसके बच्चे की थी और सिर्फ बच्चे की ही रह गई थी। वो अदम थी तो अब उसे मंजर नहीं होना था। तसव्वुर थी तो अब उसे हकीकत नहीं होना था। बुआ उसे अरसलान भाई का सूट देकर ऊपर आई तो आंखों में खुशगवार सा तासुर ठहरा था। वो फारिस की आमद पर इतनी खुश थी कि पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे, ऐसे जैसे वो उनका सचमुच का दामाद हो। मैं सोच रही हूँ तेरे घर वाले को खुशखबरी सुना दूं या तो खुद सुनाएगी? उन्होंने पूछा। वो गुमसुम सी उन्हें देख कर रह गई। बुआ उसके लिए सब कितना मुश्किल कर रही थी। और ये क्या, तू अंदर छुप के बैठ गई? क्या सोचेगा वो? बुआ उस पर खफा हुई। उन्हें फारिस की कितनी फिक्र होने लगी थी, सिर्फ इसलिए कि वो उसका शौहर था। उसकी आमद का मकसद, उसका इरादा जाने बगैर सिर्फ इसलिए कि वो उसकी थी, तो वो अहम हो गया था। वैसे माशाल्लाह तेरा घर वाला बड़ा सोना है। लगे हाथों तारीफ भी कर डाली। कोई सोना वोना नहीं है वो जो इतनी देर से सब्र किए बैठी थी बोल पड़ी। बुआ ने मुड़कर उसे देखा। वो खफा सी चेहरे का रुख बदल गई। उन्होंने अलमारी से एक मर्दाना शॉल निकाली और जाने क्यों मुस्कुराती हुई चली गई। बारिश का जोर टूट गया। मध्यम फुहार हनूस बरस रही थी। उसने दूसरी मोमबत्ती जलाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, मगर अंधेरा ठहरा रहा। उलझन बढ़ती रही। कुछ ही देर बाद अली आ गया। वो आपके शौहर हैं? पता नहीं अली पूछ रहा था या बता रहा था। उसने कुछ ना कहा। ठंड लग गई है उन्हें, छींकें आई जा रही हैं। इतनी देर तक तो वो दरवाजे पे खड़े बारिश में भीगते रहे। वो उसके बराबर में तख्त पर टिक गया। टॉर्च हाथ में थी। अम्मा ने अब्बू के कपड़े दिए हैं उन्हें, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। कपड़े? अब के जरा सा रुख मोड़ा। नहीं वो खुद। उसने निगाहें मोमबत्ती पर जमा ली। लाइट जाने कब आनी थी। उनकी गाड़ी अच्छी है और मोबाइल भी। फिर जैसे काम की बात याद आई तो फौरन नीचे उतरा। अम्मा कह रही हैं सरदर्द की गोली दे दें। किसको चाहिए? जिनको छींकें आई जा रही हैं उन्हें। अब के वो जरा सा चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। बुआ ने कहाँ बिठाया है उसे? बैठक में। उसे याद आया बैठक के बैरूनी दरवाजे से अक्सर एक बिल्ली अंदर आ जाया करती थी। बारिश के मौसम में तो लाजमी ऐसा होता था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो तेजी से नीचे आई। ईशा और फातिमा बरामदे में रखी चारपाई पर बैठी थी। बुआ ने डांट कर बिठाया था कि ईशा भागते हुए दोबारा फिसल कर गिर चुकी थी। बुआ? वो सीधा किचन में गई थी। बुआ ने खाना गर्म करते हुए उसकी तरफ जरा सी खुफी से देखा कि मोहतरमा को नीचे आना याद आ गया। आप उसे किसी और कमरे में बिठा दें। उंगलियां मसलते हुए वो परेशानी से बोली। जन्ना, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बुआ को बकायदा गुस्सा आ गया। मैंने ये तो नहीं कहा उसे घर से निकाल दें। वो एहतजाजन दबी आवाज में चलाई। एक ही बात है। उनका पारा चढ़ गया।
मैं देख रही हूँ जब से वो बेचारा आया है तुझे आराम नहीं मिल रहा। बेचारा? जन्नत की आंखों में उस नाइंसाफी पर आंसू आ गए। उसे बिल्लियों से एलर्जी है बुआ, बैठक में बैठा रहा तो तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो उसकी पहले से खराब है, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाकर यहाँ आया है। वो जेरे लब बुरबुराते हुए बर्तन में सालन निकालने लगी। तू जा, जहाँ बिठाना है बिठा दे। उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया। बुआ? वो रोहांसी हुई। बुआ ने खुद को सख्त पत्थर कर लिया। उसका शोहर, उसका फर्ज, उसकी जिम्मेदारी। वो बिगड़े तेवरों के साथ बाहर निकल गई। अली को आवाज देकर बैठक में भेजा और खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। बेड पर से कुछ रसाले गुस्से से इकट्ठे करके साइड टेबल पर रखे, तकिए वगैरह दुरुस्त किए, चंद मजीद मोमबत्तियों का इजाफा करके रोशनी बढ़ाना चाहिए। ऐन उसी लम्हे अली कमरे में दाखिल हुआ। क्या मतलब? यही ठीक हूँ। तुमने बताया नहीं उन्हें कमरे में बिल्ली आती रहती है? ये क्यों बताना था? अली सरापा सवाल बन गया। उफ! उसने पेशानी पर हाथ मारा, फिर जब्त करके सीढ़ियां उतरती नीचे आ गई। अली बड़े मजे से टहलता उसके पीछे था। बताया था मैंने, बताया था बिल्ली आती है कमरे में, लेकिन वो फिर भी नहीं उठे। उसने मुड़कर अली को देखा, फिर दांत कुचकचाते हुए ड्राइंग रूम का अध खुला दरवाजा पूरा खोल दिया। दरवाजे के बिल्कुल करीब वो सोफे पर शलवार सूट में मलबूस बैठा था। छींकों से कुछ आजिज होकर उसने सर उठाया। आंखों में खुफगी, गुस्सा, नाराजगी और जाने क्या कुछ लिए जन्नत कमाल एक बार फिर उसके सामने खड़ी थी। अगर अब तुम्हें रिएक्शन हुआ तो मैं तुम्हें सीपीआर नहीं दूंगी। हॉस्पिटल भी काफी दूरी पर है, अभी से बता रही हूँ तुम्हें। लहजे को हत्तुल मकान सख्त रखते हुए उसने अपने मखसूस लहजे और अंदाज में उस पर वाजिया कर दिया। और जाने कैसे और जाने किस तरह फारिस वजदान के लबों पर तबस्सुम बिखरा। आंखों की नमी यकायक भर गई। बेनाम सा हुज़न सुर्ख डोरों में ठहर गया। अपनी जिंदगी प्यारी है तो कमरे में आ जाओ, वो कहकर पलट गई। फारिस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसी खामोशी के साथ उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ता छत वाले कमरे तक आ गया। दरवाजा खोलकर उसे अंदर दाखिल होने का रास्ता देती वो खुद बाहर ही रही और कुछ ही देर में वो फिर से नीचे थी। बुआ ट्रे हाथों में लिए बाहर आई तो उसने चेहरे का रुख पूरे का पूरा मोड़ लिया कि मुबादा अब वो उससे ये ना कह दें कि खाना भी वो ले जाए। सद शुक्र बुआ ने ऐसा कुछ ना कहा। वो खाना देने गई तो कुछ देर तक ऊपर बैठी रही और नीचे वो जले पैर की बिल्ली की तरह चकराती रही, यहाँ से वहाँ और फिर वहाँ से यहाँ। लाइट आ चुकी थी, बच्चे सो गए थे। संदल आपा ने फोन करके कह दिया मौसम खराबी की वजह से वो कल ही आएंगी और उसे किसी सूरत ना नींद आ रही थी ना सुकून मिल रहा था। अजीब सी टेंशन थी जिसने उसे घेर लिया था। जाने बुआ क्या बात कर रही होगी, वो उनसे क्या कह रहा होगा। ऐसा ना हो बुआ मिन्नत समाजत करने लग जाए उसकी। उसने निचला लब दांतों तले दबाया। कुछ ही देर में उसने बुआ को सीढ़ियां उतरते देखा। ज्यादा तो कुछ नहीं खाया। वो किचन में ट्रे रख कर उसके पास आ गई तो फिर वो खुद से कुछ पूछ भी नहीं रही थी और वो चाहती थी बुआ सब बता दे। तबीयत ठीक नहीं है, गोली दी है मैंने, कोई बात भी नहीं कर रहा। तुम जाओ ऊपर, उससे पूछो किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मेरे सामने झिझक रहा था, तुम्हें बता देगा। बुआ? उसने रुहासा होकर सर उठाया। आप? जन्ना? उन्होंने खुफगी से टोका। शोहर है वो तेरा, कोई अजनबी नहीं है। जा शाबाश, उन्होंने मोहब्बत से पचकारा तो आंखों में ढेर सारी नमी लिए वो बिगड़े तेवरों के साथ ऊपर आ गई। एक तो बुआ आंखें रगड़ कर साफ की कुछ समझती ही नहीं है, बुरबुराते हुए अंदर दाखिल हुई। सामने ही वो उसे बेड पर नीम दराज दिखाई दिया। वो जानती थी उसे अपने घर के अलावा किसी और जगह पर ठीक से नींद नहीं आती थी, मगर वो बेड पर एक ही पोजीशन में इतनी गहरी नींद सो रहा था कि वो चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे से नजर ना हटा सकी। उसे बेसुकून करके वो हमेशा कितने सुकून से सोता था। तप कर लब भींचे, आंखें रगड़ी, एक बार फिर उसे देखा। बारिश से मौसम काफी से ज्यादा ठंडा हो गया था। हल्का सा पंखा अभी भी चल रहा था तो कुछ सोचकर कंबल फैला दिया। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बारिश से मौसम काफी से ज्यादा ठंडा हो गया था, हल्का सा पंखा भी चल रहा था तो कुछ सोचकर कंबल फैला दिया कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। पास ही मोबाइल रखा था, झुककर उठा लिया। मोबाइल ऑफ था, बैटरी तकरीबन खत्म। इस मोबाइल की चार्जर वाली पिन पूरे घर में किसी के पास नहीं थी। उसे बेइख्तियार मिसेस शेराजी का ख्याल आया।
جب کبھی وہ رابطہ نہیں کر پاتا تھا تو وہ اس کے لیے بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ ہو رہی ہوں گی۔ گہری سانس لے کر موبائل رکھ دیا، بلب بجھا کر اس نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول دیا اور خود شال اوڑے باہر آ گئی۔ منڈیر کے پاس رک کر اس نے تاریکی میں دور تک دیکھا۔ طوفان گزر چکا تھا مگر اس کے آثار رہ گئے تھے۔